Good afternoon, everyone. Am I audible to you all? Just you can mention in the comment box that am I audible. We are trying to get in connect with our today's speaker. If my voice is not clear, if my video is not clear, please mention in the comment box. My voice is clear. Thank you so much for the reply. I'm trying to connect with our today's speaker. Extremely sorry for keeping you all waiting. There is some technical issue going on from the speaker's end. So we are trying to resolve that and we are trying to connect as soon as possible. Good afternoon, everyone. Our speaker is already with us. I welcome you all. Thank you so much, ma'am. Good afternoon. Good afternoon, Dr. Aditi. Thank you for inviting me here. Yes, without wasting much time, we will start our today's session. I'm Dr. Aditi Kulkarni. I'm the director of Be Active Physiotherapy and Ergonomics Clinic. I'm working in the field of physiotherapy and ergonomics since 2010. Our brand got formed in 2013. On the occasion of the 7th anniversary and starting a new facility, which is an exercise medicine at our clinic, there are many experts are giving the live talks and they are sharing their valuable knowledge with us. So today's speaker is a renowned person in her own field. She has done her PhD in counseling from the Florida, USA. She is the regional director for the Vedic IAS Academy for the Maharashtra state. She's highly skilled freelance trainer. More than almost lakhs of people she has given the training. Those can be the employees, can be the lots of professionals, some sort of an industrial training, some sort of a time for the students which she has worked. She has been associated with many women welfare associations. She is working since almost the day she started her career. She is working in the psychological, even in the fitness point of view with the for the women's fitness team. There are many Pilates classes also she is running in the morning time for the fitness batch. There are exceptional presentation skills she has, and at the same point of time, she has a very good organizational and the time management abilities. The same point of time, she has given the presentation trainings and in the various fields which are related to the psychological aspects and which are giving emotional aspects and the well-being of the person. So this is a brief introduction, and Vedic IAS Academy is India's largest online academy, which is with the affordable fees and the best academic support stand monitoring from the IAS, IPS, IRS and IFS officers. Almost 10,000 students from the Maharashtra and 1 lakh from the India are going to be adopted by this academy for their civil service studies.
This is and she is a regional director of this Vedic IS Academy. We are really proud of you, ma'am, and I really welcome you and thank you so much for giving your valuable time in between your busy schedule for us and sharing your knowledge with us. Thank you so much. She is a wonderful human being. She is skilled in all languages. She is trying to be working on the urban level as well as from the rural level. This is one of her best quality. It is never urban because she's been into the rural as well. And she is taking all kinds of an efforts to make people educated in their field as well as in the field of emotional level, in the field of psychological aspect, in the field of her fitness level. So, and day before yesterday only she has delivered a wonderful talk in Kolhapur, which was amazing talk. I got a lot of feedback from the viewers. Thank you so much, and it's an honor for Be Active family that you are one of the part of it now, and thank you for being here. So, thank you so much, ma'am. Over to you. Dr. Aditi, thank you so much for this wonderful introduction. Even I didn't know that much about me, what you have expressed, and I'm extremely grateful for what you have shared. It has Thank been you an so amazing journey. Yes. It's our pleasure to have you with us, ma'am. Well, same here. Likewise, it's an honor for me to be connected with you. Even being in Kolhapur, well, as you mentioned, day before yesterday, I had a lecture for older people, older crowd, wherein how to be happy and healthy while you are aging, while you are getting older in your age. How can you be happy? So Right. that was the topic. So thank you for Yes. sharing that as well. Dr. Aditi, you have taken the entire introduction to a next level. But if we talk about a bit about the topic, psychology aspects, There is a one comment and from the ma'am. Comment in the comment box. English समझ में नहीं आ रही है, हिंदी में बात कीजिए अपनी मातृभाषा में. Thank you so much, sir, for giving this wonderful feedback at the time of beginning of the session. We are surely going to give the introduction in the English as well as in Hindi. So आज से this session आज का जो session है वो पूरा का पूरा हम लोग हिंदी में करेंगे. Absolutely fine. And there will be any English word जो भी बीच बीच में रहेगा that for sure we will translate in Hindi also as well as in English, and we are trying to give the entire as much as the data contained will be in Hindi. Thank you so much for the feedback. डॉक्टर अदिति, Yes, थैंक यू ma'am. वेरी मच. आपने जो बहुत ज्यादा शुक्रिया आपका, जिस तरह से आपने हमारा इंट्रोडक्शन दिया और हमारे व्यूअर्स ने भी अच्छे से हमें फीडबैक दिया कि हम हिंदी में सुनना चाहते हैं. जी हाँ, हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा है एंड हमें अच्छा ही लगेगा हिंदी में वार्तालाप करके आपके साथ. अगर कोई शब्द है जो साइकोलॉजिकल व्यू पॉइंट से रखे जाते हैं तो वो उनका प्रयोग हम अंग्रेजी भाषा में करेंगे, एक अगर कोई दिक्कत ना हो तो. ठीक है, बिल्कुल मैम. तो जिस तरह से आपने कहा कि हमने एक टॉपिक चुना है जिसका नाम ही है कि साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स हमारे फिजिकल फिटनेस के द्वारा क्यों इम्पोर्टेंट है, क्या जरूरत क्या है इस चीज की. तो मैं आपको अब सबको ये बताना चाहूंगी, दोपहर के वक्त आप सब इकट्ठे हुए हैं एंड आपको सुनना चाहिए. अच्छी बात है, बुरी बात है, वो बाद में देखेंगे, लेकिन आपको ये अच्छा लगेगा सुन के कि पता नहीं अच्छा लगेगा भी नहीं, लेकिन हम फर्स्ट 3 कंट्रीज में है. इंडिया इज इन फर्स्ट 3 कंट्रीज जो डिप्रेशन में हाईएस्ट है. सबसे ज्यादा डिप्रेस्ड पीपल जो दुनिया में पाए जाते हैं उसका 3rd रैंक इंडिया माना जाता है. पहला रैंक है यूएस, दूसरा रैंक है चाइना और तीसरा है इंडिया. ये रिसर्च 2016 में किया गया था और इस रिसर्च के अनुसार इंडिया वाज ऑन द 3rd लाइन. 2018 में ये रिसर्च दोबारा किया गया था तो इंडिया और चाइना में बहुत ज्यादा फ्रिक्शन था टू गेट इनटू द 2nd रन एंड सॉरी टू से, लेकिन 2018 में अब हम डिप्रेस्ड, सबसे ज्यादा डिप्रेस लोगों में से ऑन द 2nd रन में है, वेरी क्लोज टू व्हाट यूएस इज. इसीलिए ये टॉपिक हमेशा हमें लगता है कि फिजिकल फिटनेस मतलब बॉडी बनाना, बॉडी बिल्डिंग होना या फिर बहुत खूबसूरत फिगरेटिव बॉडी होना, लेकिन इससे ज्यादा जरूरी जो बात है वो है फिट रहना. Very true. I completely agree with you.
यस, हमेशा हमें लगता है इट्स नॉट बॉडीली स्लिम रहना, फिगरेटिवली स्लिम रहना, हम बिल्कुल ये बात नहीं कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि एक्टिव रहना, फिट रहना, जिससे आपकी मेमोरी, जिससे आपका जो मेंटल स्ट्रेन है वो बैलेंस रह सकता है। बहुत से साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स है, मैं नाम लेना चाहूंगी, स्किज़ोफ्रेनिया, ऑल्जाइमर्स, बाइपोलर डिसऑर्डर, एंजाइटी, स्ट्रेस, ये सारी चीजें हम थोड़ी देर में इसके बारे में थोड़ा इन डेप्थ भी बात करेंगे, लेकिन ये सारी चीजों का डायरेक्ट ताल्लुक है वो हमारे फिजिकल फिटनेस से होता है। ये मेंटल हेल्थ भी है, लेकिन अगर हम फिजिकली फिट रहे तो ही हमारा मेंटल हेल्थ बैलेंस रह सकता है। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन दुनिया भर के डॉक्टर्स ये कहते हैं कि अगर डिप्रेशन को ट्रीट करना है, मतलब थोड़ी कम ज्यादा मात्रा में डिप्रेशन है, मॉडरेट है, माइल्ड लेवल डिप्रेशन है, उसको दवाई की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा एक्टिविटी करो, एक्सरसाइज करो, हफ्ते में 3 बार थोड़ा सा फिजिकल एक्टिविटी रखो अपने डे टू डे लाइफस्टाइल में, और यू कैन सी द चेंज, वो भी बिना किसी साइड इफेक्ट के। कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होगा अगर आप फिजिकली एक्टिव रहे। बहुत बढ़िया मैडम। हाँ, जी। बहुत बढ़िया ये आपने शेयर किया हमारे साथ कि फिटनेस एक्टिविटी मतलब व्यायाम रोज का जो हम लोग करते हैं, जो एक सिर्फ एक व्यायाम हमारे शरीर का नहीं होता, व्यायाम हमें मन को भी देना बहुत जरूरी है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि व्यायाम, जैसे आपने बताया कि फिटनेस लेवल, द एक्सरसाइज पार्ट ऑटोमेटिकली हेल्प्स टू डील विथ ऑन द इमोशनल फ्रंट ऑल्सो। जैसे आपको अगर बताया जाए कि हमारे फिजियोथेरेपी एस्पेक्ट में अगर हम लोग एक्सरसाइज के साथ साथ उनको हैप्पीनेस, देयर आर सर्टेन म्यूजिक एंड द थेरेपीज व्हिच वी वर्क अलोंग विद देम, द रिकवरी इज फास्टर, which we have seen. Previously, I used to keep it completely silent in the clinic because no voice, no this thing, no disturbances. There are kind of a thing which we strictly used to follow the disciplinary manner. But then we started conducting. उसके साथ साथ हम लोगों ने एक म्यूजिकल थेरेपी ऐड कर दी, जब मैंने भी सीखा, एंड आई स्टार्टेड इम्प्लीमेंटिंग इन माय क्लिनिक ऑल्सो। तो उसके साथ साथ जो हमने इफेक्ट देखे, जैसे आपने अभी कहा कि वैसे डिमेंशिया के भी केसेस रहते हैं। तो जिस तरह से वो डिमेंशिया या तो फिर साइकोलॉजिकल डिसीजेस जो प्रोग्रेसिव है, उन सारी चीजों में हमने बहुत ज्यादा फर्क महसूस किया जब हमने उसके साथ साथ फिजिकल फिटनेस अलॉन्ग विथ म्यूजिकल थेरेपी ऐड करी। इस्तेमाल करते हैं एज अ मेंटल वेलबींग, जिस तरह से हमने उसको इस्तेमाल करना चालू किया, ऑटोमेटिकली द 100% रिजल्ट कमिंग। एंड जैसे आपने मैम ने अभी एक अच्छा सा पॉइंट मेंशन किया कि बिना साइड इफेक्ट, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कि बिना साइड इफेक्ट अगर कोई चीज हमें मिल रही है तो कम से कम उसकी एक्सपेरिमेंट करने में क्या जाता है। वैसे हमारा एक एटीट्यूड होना चाहिए कि एक्सपेरिमेंट करके देखो, अपने आप आपका स्फूर्ति आएगी, आपकी बॉडी रिएक्ट करना चालू होगी, आप में हैप्पीनेस हार्मोन सिक्रीट होंगे और ऑटोमेटिकली यू विल स्टार्ट फीलिंग एक्टिव। जैसे एक्सरसाइज मेडिसिन इसीलिए हम लोगों ने डिजाइन उसी तरह से करा है कि ये एक्टिव लोगों के लिए भी है, ये इनएक्टिव लोगों के लिए है, और उसका सबसे मेन मोटिव है WHO वगैरह वो सब जो लोग, one of my mentor, there are Dr. Feely, those are the people who are working on the route कि to make India less inactive। हमें नहीं कहना कि लोग एक्टिविटी नहीं करते, घर का काम एक्टिविटी नहीं है। जिस तरह से आप एक्टिविटी करते हो, तो थोड़ी थोड़ी एक्टिविटी भी अगर हमने जिस तरह से आपके मसल्स फ्लेक्सिबल रहने के लिए, आपकी एक्टिविटी बढ़ाने के लिए करी है, उस तरह से ऑटोमेटिकली आपकी साइकोलॉजिकल वेलबींग भी मेंटेन करी जाएगी। Dr. Aditi, you are absolutely right. Physiotherapy is one of the best ways जिसमें मेडिसिन की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन फिजियोथेरेपी से एक मेंटल स्टेबिलिटी भी आती है और पीस और कामनेस एक बॉडी में आ जाता है। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि फिजिकल फिटनेस एक्टिविटी करने के लिए चलो यार लोग चले भी जाते हैं, लेकिन बहुत बार दर्द की वजह से
वो कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं। वो करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर पाते हैं। ऐसे वक्त पे फिजियोथेरेपी एक ऐसी चीज है जिसके वजह से हम कंटिन्यू कर सकते हैं और अपने पेन को भी शांत कर सकते हैं। यस, इसीलिए जैसे आपके हाँ, जैसे आपके साइकोलॉजिकल डिसीजेस के बारे में मैम अभी आप हमें बताएंगी कि उसमें भी फिजियोथेरेपी एक अलग तरीके का थेरेपी रहता है, जो जैसे सिर्फ फिटनेस वाला थेरेपी अलग है, देयर इज अ ब्रेन फिजियोथेरेपी एस्पेक्ट ऑफ दिस फिजियोथेरेपी इज यस, आल्सो देयर। तो वो हमें काफी इफेक्टिव मिलता है, और उसका उन सारी चीजों से हम लोग पेशेंट का कम से कम वेलबींग मेंटेन कर सकते हैं। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, क्योंकि जिस तरह से हमें फिजियोथेरेपी का और फिजिकल एक्टिविटी का अगर एक दूसरे से बैलेंस हो जाए तो हमारा जो न्यूरल ग्रोथ है, ब्रेन फंक्शनिंग है, अब डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी है, जो एक्टिविटी पैटर्न्स है वो इम्प्रोवाइज होते हैं डे टू डे लाइफ में। जो भी हमारे एक्टिविटीज अभी जैसे लथार्जिक हो गया है, क्योंकि 9-10 महीने से हम सब घर पे बैठे थे, खाना अच्छा खाना हुआ, लेडीज लोगों ने बहुत प्यारा प्यारा खाना बनाया है और द एंटायर फैमिली गॉट इंक्लूडेड इन इट, और सबने बहुत अच्छे से प्यार से उसको एंजॉय भी किया है और वो हेल्थ पे नजर भी आता है सबके, जो कि अच्छी बात है। मैं तो कहती हूँ अच्छा खाना खाना चाहिए, अच्छे से खाओ, लेकिन उसी हिसाब से अगर आप एक्टिव रहोगे तो आप मेंटली भी फिट रहोगे, क्योंकि आप ब्रेन को भी सेटिस्फाई कर रहे हो, अपने टंग को भी सेटिस्फाई कर रहे हो। अगर आपका पेट खुश तो फिर आप खुश, ऐसे भी बोल सकते हो। बट एट द सेम टाइम हर चीज का बैलेंस मेंटेन करना जरूरी है। अगर आप बाहर का भी कुछ खाना चाहते हो तो आप किस हद तक खा रहे हो, महीने में 1 या 2 बार, प्लान इट अकॉर्डिंगली, और उसके हिसाब से आप अपना डाइट भी मेंटेन करना चाहिए आपको। It's what do वेरी you ट्रू, think, वेरी Dr. ट्रू मैम। Aditi? Yes. Very true. I completely agree with you, because the harmonizing your life is the most important key of your life. क्योंकि अगर आपका खाना अच्छा है, आपका सोचना अच्छा है, आपका फिटनेस अच्छा है, तो जो भी चीजें आप दिन भर में करोगे वो सारी चीजें आपकी इम्यूनिटी बढ़ाने में आपकी काम करेगी। और आपकी इम्यूनिटी बढ़ी रहेगी तो डेफिनेटली ये पैंडेमिक क्या, देयर आर सो मेनी थिंग्स वी कैन कोप अप विथ। तो मेंटल वेलबींग भी उसी चीज का एक पार्ट है। जैसे फिजिकल वेलबींग, जैसे फिजिकल फिटनेस कहा जाएगा, जैसे अल्जाइमर्स हो गया, एंजाइटी डिसऑर्डर्स हो गए, डिमेंशिया हो गया, जैसे अभी आपने बताया सिक्सोफ्रेनिया हो गया। तो लोगों को मैम आप हमें थोड़ा सा ब्रीफ में बताइए। Of course, there are physiotherapy aspects we will share later on with you. बट किस तरह से हम लोग उस फिटनेस और साइकोलॉजी का दोनों का एक संबंध जोड़ सकते हैं। जैसे मेरा मानना है खुद का कि फिजियोथेरेपी एंड साइकोलॉजिकल फिटनेस गोज हैंड इन हैंड। एक दूसरे की इतनी जितनी फिजियोथेरेपी की जरूरत होती है उतनी ही ज्यादा साइकोलॉजी की भी जरूरत होती है। तो आपका क्या मानना है इस बारे में? अगर हम फिजिकली, मतलब सुबह का वक्त 10 या 15 मिनट, 10 या 15 मिनट, मैं कह रही हूँ मिनिमम, जिनके पास वक्त नहीं है, बहुत ज्यादा काम करते हैं, एंड आई कंप्लीटली अग्री, ऐसे बहुत सारे लोग होंगे, हमारे दर्शकों में भी बहुत सारे हैं, और बहुत प्यारे प्यारे मैसेजेस भी आ रहे हैं नीचे, मैडम हम हैं यहाँ पे, आपको सुन रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। जब भी हम कौन सी भी फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो हमारे ब्रेन में एक केमिकल रिलीज होता है, और वो केमिकल होता है एंडोर्फिन। एंडोर्फिन एक ऐसा केमिकल है जो खुशी देता है, मजा आता है, हंसी आती है हमारे चेहरे। इट इज अ हैप्पीनेस हार्मोन। और जब फिजिकल एक्टिविटी कौन सी भी करते हैं ना तो अच्छा लगता है, वो हार्मोन रिलीज होता है, और वो हार्मोन बस 10 मिनट में, जब आप फिजिकल एक्टिविटी शुरू करते हो बस 10वें मिनट में वो हार्मोन आपको ट्रिगर करता है, गिविंग यू अ सेंस ऑफ हैप्पीनेस, सेटिस्फैक्शन। ब्रेन के ग्रोथ के लिए, ब्रेन के स्टेबिलिटी के लिए, डिप्रेशन के पेशेंट्स में बैलेंस लाने के लिए ये एंडोर्फिन जो केमिकल है, हार्मोन है, आपके ब्रेन में रिलीज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। वो रिलीज करने के लिए जो मेडिसिन यूज किए जाते हैं, दे आर वेरी हार्मफुल फॉर आवर बॉडी। बहुत बार उनसे साइड इफेक्ट ऐसा होता है कि हम वेट गेन कर जाते हैं, हमारे नीज हर्ट करने लगते हैं, हमारे एंकल्स हर्ट करने लगते हैं, क्योंकि वो मेडिसिन का प्रभाव ही हमारे बॉडी पे इतना ज्यादा होता है कि हम बहुत ज्यादा सोना चाहते हैं, किसी से बात नहीं करना चाहते,
एंटी सोशल हो जाते हैं, लोगों से दूर दूर रहने लगते हैं। तो अगर हम हमारा सेल्फ एस्टीम बढ़ाना चाहते हैं, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाना चाहते हैं, हमारे कम्युनिकेशन पे अच्छे से काम करना चाहते हैं, तो हमें फिजिकल एक्टिविटी हमारे डेली रूटीन में इन्वॉल्व करना जरूरी है। वेरी डॉक्टर ट्रू। अदिति, मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहती हूँ। जब मैं अमेरिका में कॉलेज में थी तो मेरे एक जर्मन प्रोफेसर थे, तो उनका एक अजीब तरीका था। तो वो कहते थे अगर आपको अंदर आना है, उनका पब्लिक स्पीकिंग का क्लास था, तो कहते हैं अंदर आना है आपको तो 10 आपको डिप्स लगाने हैं और फिर अंदर आना है। अगर नहीं लगाते हो तो मेरे क्लास में नहीं आना। मुझे बिल्कुल, समझ में हमारे नहीं आता स्कूल था। में भी ये हुआ करता था। जब मेरा तो गर्ल्स स्कूल था, वैसे तो हम लोग जब जाते थे तो वैसे भी बहुत बड़बड़ बड़बड़ मस्ती मजाक सब चलता था, जी हाँ बिकॉज जी। पूरा गर्ल्स का गैंग रहता था। बट जब भी हम्म हमें किसी मैथ्स क्लास में या कहीं जाना होता था, उसके पहले मैंने हम्म हमेशा नोटिस करा, क्योंकि मैं बहुत दिनों पहले ना हमारा एक शेड्यूल देख रही थी, तो उसके पहले पीटी का क्लास रहता है। सो जो भी इम्पोर्टेंट चीजें थी उसके पहले हमारे स्कूल के फिटनेस ट्रेनर्स ने वो पीटी रखवा दी थी, जबकि हमको वो इतनी कंपलसरी रहती थी, बहुत बोर होते थे वो टाइम पे, तो हमें समझ में भी नहीं आता था। बट वो जी पीटी हाँ का जी। अब मतलब समझ में आ रहा है कि कुछ तो हिलो डुलो ताकि मेरा कुछ पढ़ा हुआ समझ में आ जाए। जी हाँ जी। जी हाँ जी। यस। इसीलिए उससे क्या हो जाता है, कंसंट्रेशन बढ़ता है। जो लोग पब्लिक करेक्ट। स्पीकिंग में डरते हैं उनका सेल्फ एस्टीम बढ़ता है। अचानक राइट। से एकदम चौड़े हो जाते हैं। वो कहते हैं कि आप डिप्स लगा के आओ, पुशअप्स मार के आओ क्लास के अंदर और लोगों के सामने खड़े रह जाओ। आपका 30% जो डर है वो अपने आप ही निकल जाएगा। तो बिल्कुल बिल्कुल, मैं जब इतना बच्चों जरूरी को होता है। पढ़ाती हूँ कॉलेज में, मैं भी वही कहती हम्म हूँ कि आपको समझ में मेरा आ रहा है नहीं आ रहा है वो तो ठीक है, वो छोड़ दो, लेकिन हम्म कम से कम ऐसी शक्ल बनाओ कि मैम सब समझ में आ गया। वाइवा में खड़े रहो तो ऐसे खड़े रहो कि भाई मुझे लगा ये बंदा तो भाई टॉप कर जाए। मतलब एक तरह का फिटनेस दिखता है ना, इट शोज ऑन देयर फेस कि मैं तो भाई टॉप करने ही वाला हूँ, आप मेरे को कुछ भी पूछो। so automatically that shows on your face, the self confidence is going to get boosted. Then definitely हम्म। there are other aspects of it कि automatically you start getting the self awareness of your body. The एब्सोल्युटली। awareness is utmost important. मैं अगर फैट भी हूँ, but how to हम्म cope up with that showing of my obesity, how to हम्म। enhance my other aspect of my personality so that my that obesity will not come out, it will हम्म। not hamper my personality. So fitness is definitely going to be there, but there is a psychological aspect that you love yourself. So यस। automatically those things start implementing in your personality, you show that personality to the outside world, automatically that positive vibes reverse back come to you, and you start again getting a more of and getting boost of यस। confidence. यस। राइट। जिस तरह से हाँ। आपने कहा, सेल्फ लव होना बहुत जरूरी है। सेल्फ लव में बहुत बड़ी बात है। आपके बहुत सारे लेक्चर्स, बहुत सारे एक्सपर्ट्स ने बुलाया था, बहुत लोगों को आपने बुलाया था, सबने एक चीज पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया है, एक्सेप्टिंग योरसेल्फ। खुद ट्रू। को आप एक्सेप्ट करना जरूरी है। यस डॉक्टर अदिति। द एक्सेप्टेंस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट की ऑफ द फिटनेस ट्रेनिंग ऑल्सो। जैसे जी हाँ जी। मैम इज ऑल्सो द राइट पर्सन टू गिव यू इन अ मोर डीपर मैनर हाउ साइकोलॉजी अफेक्ट्स इन द फिटनेस पार्ट। बट अगर एक्सेप्टेंस ही नहीं है कि मुझ में ये कुछ कम है या मुझ में ये कुछ ज्यादा है, डेफिनेटली द रिजल्ट विल बी जीरो। बिकॉज एज सुन एज अगर आप में कोई भी मेंटल डिसऑर्डर भी है, एक्सेप्ट इट। आई एम डूइंग ओवर ईटिंग, एक्सेप्टेड। मुझ में नॉशियाटिक फीलिंग आती है जब मैं ट्रैवल करता हूँ, दैट इज ऑल्सो समटाइम्स इन द सबकॉन्शियस ब्रेन। समटाइम्स इट इज अबाउट डूइंग अ फटीग थिंग, जैसे वर्टिगो के पेशेंट्स में आते हैं, उनको बहुत जल्दी फटीग हो जाता है, एंड देयर आर सर्टन काइंड्स ऑफ इमोशनल एस्पेक्ट्स व्हिच गेट ट्रिगर्ड इमीडिएटली। अगर फटीग है तो मेंटल फटीग भी आने वाला है, तो उस फटीग पे काम करना सीखिए, उसको एक्सेप्ट करना सीखिए कि ये पॉइंट पे मैं फटीग हूं तो मैं पॉइंट तक पहुंचूंगा ही नहीं, उसके पहले रुक जाऊंगा तो मैं सेरोटोनिन एंड एंडोर्फिन एक्टिवेटर्स विल बी ऑलवेज देयर विद मी। तो उस हिसाब से आपको साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट अलॉन्ग विथ योर फिटनेस फिजियोथेरेपी एस्पेक्ट्स आल्सो हैज टू गेट मेंटेन एंड बैलेंस्ड। Absolutely, Dr. Aditi. Absolutely. And I think whatever you mentioned right now, it comes under musculoskeletal disorders as well. क्योंकि हम बहुत करेक्ट। बार वो स्ट्रेस ले लेते हैं
दिमाग में, और स्ट्रेस की वजह से अरे मेरी गर्दन गर्दन दुख रही है, मेरा थोड़ा सा हाथ अकड़ गया है, मेरा कंधा दुख रहा है, शायद मुझे फ्रोजन शोल्डर हो गया है। ये वी स्टार्ट कमिंग अप विद दीज थिंग्स। आपके पास पेशेंट तो वैसे बहुत आते होंगे कि गर्दन बहुत दिन से दुख रही है और थोड़ा सी अकड़ गई है, पीठ ऐसे सीधे नहीं हो पा रही है। तो फिजियोथेरेपी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट की दैट हेल्प्स दीज पेशेंट्स टू रिकवर। लेकिन एट द सेम टाइम इनको ये क्यों होता है, इसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होता है, वो साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट भी होता है इसका। डेफिनेटली क्योंकि उनको लगता है कि हो रहा है। कंसल्टेशन कम्स इनटू दैट प्ले कि अगर है इशू, डेफिनेटली दैट इशू इज देयर, बट वी नीड टू फाइंड आउट द रूट कॉज ऑफ दैट इशू। इसीलिए मेरा 1 घंटे का पूरा हिस्ट्री चलता है कि एक्चुअली द मस्कुलर वीकनेस, द मैनुअल मसल टेस्टिंग ग्रेड्स आर शोइंग वेरी लेस, द रेंज ऑफ मोशन इज गोइंग डाउन, बट व्हाई दोस थिंग्स हैव स्टार्टेड एक्चुअली हैपनिंग। इतना इग्नोरेंस क्यों किया कि डायरेक्टली स्पॉन्डाइलोसिस, लाइसिस, डिस्टेसिस जैसे कंडीशन में आ गए एट अ वेरी अर्ली एज। At the age, at 30, 35, people are having spondylosis. Correct. And some get a chest pain. Sometimes it's about the ear pain. Sometimes it's a migraine attacks. Pretty often. It is not like a age group related or anything. I'm not going to point out any age group, the stress level or anything. But most important, absolutely not. You just have to find out the root cause. Why me? Why I'm suffering this kind of an issues at a such a early age, which can be expected at the age of 80 or 70? Is my nutrition is imbalanced? Is my emotional imbalance is going on? Or is my just a physical fitness activity which is responsible for this? Or can be the ergonomics aspect? I'm too much tired and too much into the fatigue of in a mental way. Because of that, my postures are definitely showing the wrong impression and I'm following those wrong patterns of postures. Like I'm totally lethargic and I'm continuously slouching. So that slouch I am going to maintain for the throughout a day at my workload. Yes. So that aspects also I felt, ma'am, उसके बारे में हमें जैसे हम अगर there are certain IT people who keep visiting the clinic for the treatment purpose. तो जैसे अगर हमने अभी डिस्कस करा कि उसका रिलेशन डायरेक्टली साइकोलॉजी से होता है, तो फॉलोइंग अ गुड पोस्चर is also one of the way that you are happy. Or following, not following the good posture is also one of the way of body showing it to you कि I am not happy, I need a treatment. तो कौन से लेवल पे उनको ट्रीटमेंट लगेगी और किस तरह से उनको इसमें से बाहर आना है। जिस तरह से आपने कहा डॉक्टर अदिति, आईटी प्रोफेशनल का काम होता है स्क्रीन के सामने रहना, लेकिन वो स्क्रीन के सामने भी जब नहीं रहते हैं तो वो मोबाइल के सामने रहते हैं, जब उनकी गर्दन नीचे होती है और मोबाइल नीचे की तरफ होता है, बिकॉज ऑफ विच स्पॉन्डिलोसिस और नेक रिलेटेड इश्यूज उनको बहुत ज्यादा हो जाते हैं। सो आप कह रहे हैं कि क्या कर सकते हैं हम, बेसिकली हैविंग अ प्रॉपर टाइम शेड्यूल, अच्छा टाइम शेड्यूल मेंटेन करें और उस टाइम शेड्यूल में, उस डेली रूटीन में हम एक्सरसाइज को थोड़ा सा वक्त जरूर दें। जिससे हम क्या कर सकते हैं कि बाबा अगर हम वक्त पे सोए, आईटी प्रोफेशनल अभी कहेंगे मैडम हम आते हैं 2 बजे, क्या बात कर रहे हो, अब हम कैसे सोए। मेंटेन द बैलेंस, जैसा भी आपका काम है मेंटेन द बैलेंस, लेकिन 20 to 30 मिनट्स ऑफ प्रॉपर फिजिकल एक्टिविटी आपको हेल्प करेगी अच्छा स्लीप साइकिल मेंटेन करने में, आपका बायोलॉजिकल क्लॉक सेट करने में, आपका स्ट्रेस रिलीज करने में, दूसरे लोगों के साथ इंटरैक्शन बढ़ाती भी है, अच्छा इंटरैक्शन हो जाता है आपका, दैट विल ऑल्सो हेल्प यू। आपका ब्रेन फंक्शन, जैसे डॉक्टर अदिति ने कहा, जैसे आपने कहा डॉक्टर अदिति की डिमेंशिया, आई हैव सीन मेनी पीपल कि डिमेंशिया, बहुत लोगों को, हमारे दर्शकों को शायद पता हो ना हो, लेकिन मैं कहती हूँ कि डिमेंशिया इज लाइक प्रोग्रेसिवली, धीरे धीरे हमारा मेमोरी चला जाता है, अचानक से मेमोरी चला जाता है। इट इज लाइक अ गजनी इफेक्ट एट टाइम्स। गजनी पिक्चर सब रिलेट कर पाए। वेरी ट्रू। ओके, क्यों होता है ये? क्योंकि हम एक प्रॉपर रूटीन लाइफ मेंटेन नहीं कर पाते हैं। पुराने लोगों का क्या होता है, अरे सुबह जल्दी उठो, बाथरूम का सारा काम करवा लो, अच्छे से नाश्ता करो, अच्छे से पूरा तैयारी करो और फिर जाओ। अभी हमारा क्या हो गया है कि रात भर हम मोबाइल पे चढ़े रहते हैं। अच्छी बात है, वी आर इंटरैक्टिंग राइट नाउ ऑन द सेल फोन, ऑन इंस्टाग्राम, बट वी आर डूइंग समथिंग जो हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए ये मैसेज के साथ।
कि अगर हमें साइकोलॉजिकली बैलेंस्ड रहना है, हमारा मेमोरी अच्छे बहुत ज्यादा दिनों तक हमें मेंटेन रखना है, हमारा कंसंट्रेशन लेवल अगर हमें बढ़ाना है, तो फिजिकल फिटनेस हमारा एक पूरे दिनचर्या का भाग होना जरूरी है. Without that, surviving in this particular generation for a longer span of time is going to be difficult. कल के टाइम्स ऑफ इंडिया में आप पढ़ सकते हो कि एक 8 साल की बच्ची को हार्ट अटैक हुआ है. हाँ, वजह अलग अलग होती होंगी, उसका कुछ मेडिकल कंडीशन रहा होगा. आई एम नॉट डिनाइंग दैट, मैं ये नहीं कह रही, लेकिन हमारा लाइफस्टाइल ऐसा हो गया है कि 8 साल के बच्चे बाहर नहीं जाते हैं, वो स्विंग पे नहीं, मतलब झूले पे नहीं झूलते हैं, भागम भाग नहीं करते हैं, वो बैठ गए, कार्टून लगा दिया, मम्मा ने उनको खिला दिया. मैं कहती हूँ मम्मा यार आप भी भागो, बच्चों के साथ आप भी थोड़ा सा एक्टिव रह लो, 1-2 राउंड मारो और फिर खाने के लिए बैठ जाओ. आई थिंक दैट विल हेल्प यू आउट एंड दैट विल हेल्प यू टू मेंटेन योर सेल्फ, मेंटेन योर साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स इनटू अ मैनर कि आप बहुत ज्यादा दिनों के लिए ब्रेन वाइज यंग रहे. बहुत लोग डॉक्टर अदिति, मैं कहना चाहूंगी कि यंग रह जाते हैं लेकिन साइकोलॉजिकली बहुत जल्दी ओल्ड हो रहे हैं. हाँ बिल्कुल, डिमेंशिया का तो इतना सिंपल सा एक हमें फाइंड आउट हुआ है कि बहुत पहले ना अदिति, मुझे याद नहीं आ रहा था लेकिन मैंने उसको इग्नोर किया. उसका नाम क्या है, आई वॉज कीप थिंकिंग यहाँ 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 यहाँ, लेकिन दिन भर याद नहीं आया. That was the initial start that you have already so much stressed out. ना फिजिकल एक्टिविटी है, ना पेन कम हो रहे हैं, ना आपका ब्रेन आपको सपोर्ट कर रहा है. So the entire well-being is getting damaged and how much nutritious food you are eating is not going to help you. हेल्प ही नहीं करेगा आपको वो. कितना दिन भर आप अगर आप बादाम खाना आप 50 की उम्र में चालू करोगे तो चलेगा कैसे? तो बैलेंस डाइट हैज टू बी देयर. द सेकेंड इम्पोर्टेंट इज द फिजिकल फिटनेस एंड द थर्ड इज अबाउट द मेंटल वेलबींग. थोड़ा सा खुद के लिए टाइम निकालना, लाइक मैम सेड कि सोशल एक्टिविटी utmost on priority. Socializing is one of the best activity which you can do, and I always suggest to my patients कि socializing is never with the known people. अगर आपको ट्रैक पे भी जाना है ना तो सिंपल से कोई ना कोई ग्रुप ढूंढो, अननोन लोगों के साथ घूमना चालू करो. यू विल गेट दैट कॉन्फिडेंस कि यू कैन सर्वाइव एनीवेयर. जैसे दूसरी चीज होती है कि सोशलाइजिंग इज विद द पीपल हु यू डोंट लाइक. सर्टन पीपल का एक रहता है, ये बंदा ना मेरे को पसंद ही नहीं है, बड़ा अजीब तरीका का है. देन यू जस्ट गो टू दैट मॉब, try to spend as much as possible the time with them and jot it down why I don't like that person. It's one of the activity which I tell my students also to do it. कि ग्रुप में फुटबॉल खेल रहे हो लेकिन एक बच्चे के साथ मेरी जमती नहीं है, मम्मा मैं जाने नहीं वाला, तो वो एक है, इसके लिए फुटबॉल छूट रहा है, तो ऐसे कितने आएंगे? इट्स एन एक्सक्यूज फॉर योर बॉडी. द सेम वे कि मुझे एक चीज याद नहीं आ रही है तो हमें उस चीज को क्यों याद नहीं आ रही है, तो हमें उसकी रिविजन करनी पड़ेगी, क्योंकि ये अर्ली साइंस ऑफ मतलब इट्स एन वन ऑफ द ब्रेन एक्सरसाइज. जैसे अगर आपको ब्रेन एक्सरसाइज करनी भी है तो दिन भर का पूरा द टाइम यू गेट अप टिल द टाइम यू स्लीप, जस्ट जॉट इट डाउन. कितनी चीजें आप सीक्वेंस में लिख पाते हो, उसके ऊपर आपका ब्रेन मेमोरी, आप कितना शार्प काम कर पाते हो वो आपको पता चलेगा. जैसे पुराने जमाने में हमें सिखाया गया था टू राइट डाउन योर डायरी. रोज का रोज लिखना चालू करो, रैंडम लिखो. मेरे तो आपको भरे भरे पड़े मिलेंगे, लेकिन रैंडम लिखने से भी मुझे इतनी चीजें पता चली, अरे ये तो बहुत बेसिक था बट मुझे याद ही नहीं आया. जैसे सिंपल सा 1 रुपया गिरा था लेकिन वो मैं लिखना भूल गई. और वही चीज मुझे कहाँ रखा था वो ढूंढने के लिए, बिकॉज दैट टाइम आई वॉज नीडेड दैट 101 rupee फॉर सम काइंड ऑफ अ पूजा एट आवर हाउस. सो आई वॉज सर्चिंग फॉर दैट 1 rupee, आई कुडंट फाइंड. तब रियलाइज हुआ कि ये सारी चीजें मेरे दिन रोजाना की चीजों में भी इम्प्लीमेंट होना बहुत जरूरी है, ना कि ओनली माई क्लिनिक, ना कि ओनली व्हेन आई एम टीचिंग एज अ प्रोफेसर, बट जो चीजें मेरे लाइफ में इम्प्लीमेंट हो रही है उन सब चीजों को भी इम्प्लीमेंट करना चालू करो अपने रोजाना की दुनिया में भी. जैसे फिजियोथेरेपी है तो उसके साथ फिटनेस भी आएगा. अगर आपको जोड़ों में दर्द है तो उसके साथ साथ कोई साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट भी आएगा. अगर आपका अच्छा न्यूट्रिशन है तो डेफिनेटली ओबेसिटी साथ में भी आएगी, क्योंकि आप फिजिकल फिटनेस में नहीं हो.
तो वही चीजों का एक मराठी में कहते हैं की सगळ्याची सांगड घातली पाहिजे. कारण सांगड जर नसेल किंवा इफ दॅट हार्मनी इज नॉट देअर, so definitely it will start showing everywhere in your entire life. Your productivity, your creativity, everything will get hampered. What you say, ma'am? Anxiety बढ़ेगी कि नहीं? डॉक्टर अदिति, एंजाइटी तो बहुत ज्यादा बढ़ेगी. इसलिए अगर न्यूरो हॉर्मोन्स हमारे नॉर्मलाइज रखने हैं, अच्छे से प्यार से उनको अगर जतन करना है, तो हम आपने जिस तरह से कहा कि ब्रेन को किस तरह से हम एक्सरसाइज करवा सकते हैं, वो ब्रेन का एक्टिविटी किस तरह से नॉर्मलाइज करवा सकते हैं, जिस तरह से आपने कहा उसी में मैं कुछ चीजें ऐड करना चाहूंगी कि एक 10-15 मिनट का, मैं हमेशा मिनट की बात कर रही हूँ क्योंकि अगर घंटों की बात करूंगी तो पसंद नहीं आएगा बहुत जनों को, क्योंकि वक्त नहीं है लोगों के पास. बिल्कुल. हाँ, तो 10 मिनट शायद अगर आप रीडिंग करो, जो आपको अच्छा लगे वो रीडिंग, एक इंसान के साथ जिसको आप नहीं जानते हो उसके साथ थोड़ी सी बातचीत करो, वर्चुअली नहीं, एक्चुअली किसी को बस एक हाथ स्माइल दे दो. वो आपको वो स्माइल आपके ब्रेन के लिए एक रिवॉर्ड रहेगा कि अरे यार आई स्माइल टुडे. क्योंकि अभी स्माइल करना भी भूल गए हैं आजकल के लोग. करते देते हैं लेकिन बहुत ज्यादा ये हो जाता है कि सेल्फी के लिए स्माइल कर देंगे, पाउट कर देंगे, लेकिन एक्चुअल स्माइल आती है जो आपके लिए आती है. इट हैज टू कम राइट फ्रॉम योर हार्ट एंड दैट यू आर स्माइलिंग, एंड दैट्स व्हेन यू अंडरस्टैंड दैट यू आर साइकोलॉजिकली फिट. दैट्स व्हेन यू अंडरस्टैंड. वेरी ट्रू. जैसे एक्सरसाइज के बारे में मैम बता रही है, तो रोजाना की चीजों में अगर आप जाके कहीं पे भी पार्क भी देखो ना, एक बार जाके खेल के देखो. इट इज अ वेरी गुड एक्सरसाइज फॉर योर ब्रेन. You start getting a more of happiness hormones. I have tried it. You can go to my n number of pages. You will find with the I'm playing with the kids. It is very good exercise for your body. The second thing which you can do it, keep doing whatever the hobbies you like about it. जैसे mandala drawing है, doodles है. There are many adult kinds of drawing books comes on the internet. In the internet shops, you can go for those. एक simple drawing करना चालू करो by doing those kind of an activity which is with the precision, the finger work. Along with the same, you can do it by sitting in a one place for at least 15 minutes for yourself. That is what most important is कि for yourself. क्योंकि ड्राइंग करोगे वो अच्छा दिखेगा तो वो खुद की क्रिएटिविटी होगी. So it's going to be for yourself. बिल्कुल. तो जॉट डाउन करना चालू करो, डायरी लिखना चालू करो, go outside and play, do some activities for yourself. That is the self love as well as it is going to give you the proper mental fitness. जैसे मैम हमारे प्लेयर्स भी रहते हैं. देर आर सर्टन एथलीट्स हु हैज वेरी कम्पिटिटिव नेचर. दैट कम्पिटिटिव नेचर हैज मेड देम टू compete everywhere but has to be in a healthy manner. For them, certain guidelines. Definitely, we would like to get a more certain guidelines for them also. वेल दैट्स वंडरफुल. जिस तरह से आपने कहा, आपने कभी मुझे पर्सनली आप मिले नहीं हो, लेकिन मैं बास्केटबॉल गेम में थी अपने कॉलेज लेवल में, बहुत अच्छा खेल चुकी हूँ. हमारे कॉलेज के सारे टीम के सबसे छोटी दिखने वाली बच्ची थी मैं हमारे कॉलेज के टीम पे. और जिस तरह से आपने कहा कि अगर हमें स्पोर्ट्समैनशिप को जतन करना है, हमें अपने बैलेंस को, अपने एग्रेशन को बैलेंस रखना है, तो पहली बात है मेक श्योर कि आप शांत रहना सीखें. शांत रहना, मैं कहती हूँ मतलब शांत रहना मतलब क्या? स्टिल डू नथिंग. दिन भर में बस 10 मिनट ऐसे निकाल लो. मैं वापस कह रही हूँ 10 मिनट ऐसे निकाल लो जब आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, कुछ भी नहीं, ना किसी का फोन उठा रहे हो, ना किसी को फोन कर रहे हो, लेकिन वो आपको एक आपके मेंटल वेल बीइंग को शांत करेगा. जापानीज टेक्निक है जिस टेक्निक को कहा जाता है इकिगा. एक फिलॉसफी है इकिगा, जिसका मतलब है सुबह क्यों उठना है. व्हाट इज द पर्पस ऑफ योर लाइफ? व्हाई डू यू वांट टू गेट अप इन द मॉर्निंग? करेक्ट. जिस तरह से डॉक्टर अदिति आपने कहा कि जर्नलिंग करो यार, क्या करना चाहते हो. सच्ची बात बोली यार आपने एकदम पॉइंट पे टच किया है. और हमारे स्पोर्ट्समैन के लिए भी मैं हर चीज एक बात कहूंगी कि व्हाट इज इट दैट यू वांट, व्हाट इज द पर्पस ऑफ योर लाइफ. वो पर्पस डिफाइन करो.
वो आपको एक साइकोलॉजिकल बूस्टिंग देगा और फिजिकली गोल ओरिएंटेड रखने में बहुत ज्यादा मदद करेगा। बिल्कुल। एक ये पहली बात रही। दूसरी बात है, वंस योर पर्पस इज फिक्स, वंस यू नो व्हाट यू वांट टू डू इन योर लाइफ, कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। करेक्ट, रिमाइंडिंग योरसेल्फ, हमेशा याद दिलाओ खुद को कि ये मुझे करना है और ये कंसिस्टेंटली मैं करूंगा, मैं कंसिस्टेंटली करूंगी। जितने सारे स्पोर्ट्स पर्सन है हमारे इंडिया के, रिसेंटली हमने टेस्ट मैच भी जीत ली है। क्यों जीती है? एकदम हार के बैठ नहीं गए हमारी टीम। क्यों? क्या नहीं, हमें करना है, हमें जिद पकड़नी है। लेकिन वो करने के लिए उनके अंदर भी वो आग, वो ज्वाला जरूरी है। और वो जलाने के लिए कोई आके आपको माचिस की तीली से नहीं जलाएगा, वो खुद को जलानी पड़ेगी। खुद के लिए वक्त बिल्कुल दिलाना पड़ेगा आपको। ठीक है, बिल्कुल तो बिल्कुल। आई थिंक दिस विल रियली रियली हेल्प, क्योंकि आपकी मेमोरी भी बढ़ेगी, आप एनर्जाइज्ड रहोगे। और जब भी आप एनर्जाइज रहोगे, लोगों को लगेगा कि यार कोई कुछ तो बात है इस बंदे में, एंड दिस पर्सन समहाउ रिफ्लेक्ट्स, एकदम हैप्पीनेस रिफ्लेक्ट कर रहा है सामने वाले। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जी हाँ जी। आई ऑलवेज एज अ रेकी हीलर और एज अ रेकी पर्सन से, बिफोर you speak your energy speak. The एब्सोल्युटली। second most important aspect of your life कि गोल क्लियर है ना, तो कितने भी ऑब्स्टिकल्स आ जाए अपने आप रास्ता मिलता है। रास्ता मिलता है या आप बनाते हो, दैट डिपेंड्स ऑन योर पर्सनालिटी, बट जी डेफिनेटली हाँ जी। रास्ता मिलेगा। द गोल्स विल बी क्लियर, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द पर्पस ऑफ योर लाइफ। और जब पर्पस मिलता है ना, तो ऑटोमेटिकली दुनिया एक लाइन पे एक अलग ट्रैक पे रहती है, आप एक अलग ट्रैक पे रहते हो। So you जी हाँ जी। understand कि this is what the criticism is about, this is what my acceptance is all about, and this is my self love. The purpose of एक बार क्लियर है तो अपने आप सारी चीजें हैंडल करना सीख जाते हो। दैट इज मोर इम्पोर्टेंट इन द एथलेटिक पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि यस, हारोगे जीतोगे इज गोइंग टू बी द पार्ट ऑफ योर लाइफ। जैसे मैं एब्सोल्युटली। स्विमर थी, कोच रह चुकी हूँ बच्चों के लिए। बास्केटबॉल जैसे कहा, आई वॉज नॉट अ गुड प्लेयर इन द बास्केटबॉल, डेफिनेटली गुड, वॉज अ गुड स्विमर, बट बास्केटबॉल में भी काफी मेडल, ब्रॉन्ज वॉन्ज लेके आती थी, बट नॉट एज अ गोल्ड मेडल, कुछ नहीं मिलता था, बट आई वॉज द शॉर्टेस्ट वन। क्या था वो टाइम पे? सेम पिंच। एक जज्बा था कि ये सेम थिंग टू यू टू, बट एक जज्बा था लाइफ का कि ये करना है। करना क्या है कि खेलना है, हेल्दी खेलना है। द सेकेंड जी मोस्ट हाँ जी। इम्पोर्टेंट इज दैट टू मेक माई सेल्फ फिट। द थर्ड गोल वॉज टू इन माई लाइफ कि एज अ फिजिकल फिटनेस थेरेपिस्ट आई शुड हैव माई ओन फिटनेस, कि अगर किसी पेशेंट को मेरी जरूरत पड़ती है तो डेफिनेटली आई विल बी दैट मच केपेबल इनफ टू हैंडल दैट थिंग। वो मेंटल यस। रहे या फिजिकल रहे या ओवरऑल वेलबींग रहे, जैसे भले मेरे पर्सनल लाइफ में कुछ होता रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता, वंस द गोल इज क्लियर। यस। तो वही चीज हम सबको, रादर एथलीट्स को सबसे ज्यादा लगती है कि आपका मेंटल वेलबींग घर पे छोड़ दो, बाकी द टोटल फोकस इज गोइंग टू बी ऑन द ग्राउंड। then you automatically set your goals and you find your purpose and you achieve everything. This is the same thing यस। I suggest for the each and every field who are professionals, कि अपना गोल रखो भाई। भले आप जी हाँ 2000 जी। की एम्प्लॉयर्स के साथ काम करो, लेकिन मेरा गोल क्या है कि जो मैं काम कर रहा हूँ उसमें मैं 100% दे पाऊँ और उसमें मुझे खुशी मिले। इंजीनियर जी तो हाँ। मैं ऐसे ही नहीं बना था, कुछ करना था तब बना था, और इंजीनियर्स के साथ ही मैं काम कर रहा हूँ, लेकिन टीम में जब मैं काम कर रहा हूँ तो मुझे खुशी तो मिले। एम आई हैप्पी विद दैट थिंग वॉट एवर आई एम डूइंग, दिस इज एटमोस्ट ऑन प्रायोरिटी। हैप्पी हो जाओ, गोल ओरिएंट कर लो, अपना एक लाइफ का डिजाइन कर लो, पर्पस फाइंड आउट कर लो, सारी चीजें अपने आप, एवरीथिंग विल फॉल इन प्लेस। दिस इज व्हाट आई फील। नाउ ऑडियंसेस, आपकी तरफ से क्वेश्चंस वी आर वेलकमिंग। आपको अगर कुछ पूछना है तो मैम से आप पूछ सकते हो। डेफिनेटली शी हैज गिवन अ वंडरफुल नॉलेज अबाउट हाउ एग्जैक्टली द फिटनेस एंड द साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स आर एसोसिएटेड विथ ईच अदर। आपको अगर उसी बारे में कोई क्वेश्चंस उनसे पूछने हैं तो प्लीज राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स, वी आर रेडी टू आंसर। एनी क्वेश्चंस?
बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स भी है एक्चुअली डॉक्टर अदिति, तो फिर वो Great. सवाल नहीं पूछते हैं यहाँ पे। दिख रही हूँ तो मैं okay, कि बहुत okay. लोगों ने ज्वाइन किया है, तो Very वो nice. कम सवाल करने वाले स्टूडेंट्स हैं मेरे। बहुत नहीं सारे नहीं, सीए absolutely. फ्रेटर्निटी से है। जी हाँ जी। Oh, great. नहीं, definitely, but almost everything, all the aspects of the diseases, all the aspects of psychological thing you have covered, ma'am. If anything would like to add from your end, definitely आप बता सकते हो हमें. एक बात मैं बताना चाहूंगी, वो है नींद। अच्छी अगर नींद आपको आए तो आपका जो साइकोलॉजिकल हेल्थ है, आपका जो मेंटल हेल्थ है, वो बहुत ज्यादा नॉर्मल रहने में काम आ सकता है अगर आप अच्छे से सो। लेकिन आपको अच्छी नींद कब आएगी? जब आप फिजिकली एक्टिव रहो। तो ये सारी Right. चीजें कनेक्टेड है। बिल्कुल रात बिल्कुल. को सोते जाते हो ना, तो सबसे दुनिया का सबसे सुखी इंसान कौन है? जो रात को सोते जाए, तकिए पे सर रखे और फिर हाँ खो जाए, नींद में बस सो जाए, ऐसा जो इंसान होता है। अगर ये आपको चाहिए है तो आपके फिजिकल वेल बीइंग पे ध्यान रखिए, जिससे आपका ब्रेन फंक्शनिंग नॉर्मलाइज रह सकता है। बिल्कुल. हमारे एक डॉक्टर राम है, उनका एक क्वेश्चन आया है. आई जी हाँ जी। अप्रिशिएट योर क्वेश्चन डॉक्टर राम. देर इज द वन क्वेश्चन मैम कि अगर किसी का कितना भी कुछ करके ओल्ड पैटर्न ही शेड्यूल के फॉलो हो रहे हैं. देर आर मेनी टाइम्स द वन पर्सन हैज ट्राइड टू चेंज देयर पैटर्न, द शेड्यूलिंग थिंग, बट स्टिल इट्स नॉट हैपनिंग. Then what that person can change on the mental well-being or on the physical well-being? How that person should cope up with? Well, many of the doctors and psychologists all over the world suggest one thing: anything that you go to, कौन सी भी चीज को अगर आप करना चाहते हो तो उसको 21 दिन के लिए अगर फॉलो करो तो इट बिकम्स अ सेंस ऑफ हैबिट। कंसिस्टेंसी तो चाहिए ही चाहिए। वो कंसिस्टेंसी लाने के लिए आप जो चाहते हो वो करो, बट विदाउट कंसिस्टेंसी, विदाउट 21 डेज ऑफ, आपको लगेगा ये पनिशमेंट है यार, क्यों कर रहे हैं हम। बहुत बार लगता है कंसिस्टेंसी नहीं हो पाती है, लेकिन अगर वो 21 दिन के लिए कंसिस्टेंसी आ जाए आपके अंदर, एंड आफ्टर 60 डेज कंसिस्टेंटली इफ यू आर डूइंग समथिंग, दैट बिकम्स अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। 20 साल हो गए मुझे, मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ, 20 साल। बीच के दिनों में एक एक्सीडेंट भी हो गया, डॉक्टर ने कहा यार एक्सीडेंट में तू बच गई सिर्फ इसलिए क्योंकि तू फिजिकली फिट है, तेरा कुछ भी फ्रैक्चर नहीं हुआ लेकिन क्योंकि तू फिजिकली फिट है, बिकॉज यू आर अलर्ट। मेंटली यू बिकम अलर्ट, फिजिकली यू बिकम अलाइंड। हमारा 4 व्हीलर का अलाइनमेंट रहता है, उस तरह का रहता है। जब तक आप कंसिस्टेंसी नहीं लाते हो अपने जीवन में, कौन सी भी एक्टिविटी के लिए, भले पढ़ाई के लिए हो, स्पोर्ट्स के लिए हो, डेली एक्टिविटी में हो, हेल्दी खाने में हो, तब तक आप अच्छा लाइफस्टाइल नहीं जतन कर पाओगे। दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन। यस डॉक्टर राम, आई होप आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन। Thank you so much, ma'am, for sharing a wonderful information with us. It was a really wonderful and informative session for everyone, I guess. It's not only about the deceased people, but not only about the athletes or the fitness people, but for everyone who wants to maintain the well-being of their life. Thank you so much, ma'am. It was nice having you here on this platform. Really nice. We are looking forward to have many more sessions in the future. So now, thank you so much, audience, for being here and being a wonderful audience and being a patient so much for almost 45 minutes with us. Thank you so much for being here. हमने 10-10 मिनट की बात की थी, देखिए आपने 45 मिनट निकल लिए हमारे साथ. Thank you so much. And tomorrow, see you with the last session of this live session, that entire series. Tomorrow is going to be with us renowned ophthalmologist, Dr. Vaishali Sathe. She is going to discuss about the eye vision syndrome and how can physiotherapy and ergonomics can help you with this. Thank you so much. Thank you very much, Dr. Aditi, again, and thank you, my lovely audience, for being here. Thank you.